وہ اس وقت بے حد حیرت زدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ ایک پل میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کی ماں بھی ان سب کے ساتھ ملی کھڑی تھی۔ وہ تو اس بات سے حیران تھا کہ شگفتہ بیگم، جو کل تک اس بات کے خلاف تھی کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کو نہیں اپنائے گا، آج ان سب کے ساتھ مل کر یہ طے کر چکی تھی کہ آج، ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح ہوگا۔ حالانکہ وہ کل اپنے چچا کی میت دفنانے کے لیے گاؤں میں آیا، لیکن اسے ذرا برابر اندازہ نہ تھا کہ یہ لڑکی اس کے گلے پڑ جائے گی۔ بس کچھ دیر کے قہر آلود نظروں سے ماں کو دیکھنے کے بعد بالآخر وہ اسما کے قریب ہی بیٹھ گیا، جو بڑا سا دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سے وہ کافی زچ ہو رہا تھا، جو بار بار دوپٹے کا پلو اٹھا کر اپنی ناک صاف کرتی اور پھر سر جھکا کر رونے لگ جاتی۔ کچھ ہی دیر میں قاری صاحب کے ساتھ دو گواہ بھی آ گئے اور قاری صاحب نے ان کا نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے وہ مٹھیاں بند کیے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے یہاں سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر پلٹ کر اس لڑکی کی طرف دیکھے بھی مت، جس کا چہرہ اس نے ابھی تک نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کی دادی روتے ہوئے بس اپنی پوتی کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے سینے سے لگائے ہوئے وہ اسے اپنا سہارا دیے بیٹھی تھی، جبکہ ان کا شفیق چہرہ بھی آج اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اس نے سوچا نہ تھا کہ یہ سب مل کر اس کی قسمت کا اتنا عجیب فیصلہ کر دیں گے۔ یزدان درانی، ولد احمد درانی، تمہارا نکاح 1,00,000 حق مہر اسما حسن سے پڑھایا جاتا ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ قاری صاحب نے دوسری مرتبہ پوچھا اور اس نے سر جھکاتے ہوئے ہاں کہہ دیا، اور وہاں موجود سب لوگوں کو اندازہ ہوا تھا کہ اس نے کتنی بے دلی سے اقرار کیا ہے، اور یہی بات اس لڑکی کے دل کو پوری طرح چھلنی کر گئی، جو کافی معصوم ہونے کے باوجود اس بات کو سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکا ذرا برابر بھی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں، یہاں تک کہ کچھ دیر پہلے اس کے منہ پر اسے ٹھکراتے ہوئے وہ اپنی ماں کو انکار کر چکا ہے۔ لیکن گھر والوں کی سازش کے آگے وہ خود بے بس تھی۔ سامنے بیٹھا شخص چاہے اس کے خوابوں، اس کی دھڑکنوں اور اس کی سانسوں پر قابض تھا، لیکن اس کی خوشی کے لیے وہ اسے دستبردار ہو جاتی، اسے صرف اپنے سپنوں کا شہزادہ بنا کر رکھ لیتی۔ لیکن یہاں اس کے گھر والے اس بات پر بضد تھے کہ وہ نکاح کر کے اسے ساتھ لے جائے، تاکہ یتیم کزن محفوظ ہاتھوں میں آ جائے اور چچا کی عزت سلامت رہے۔ حالانکہ وہ خود ایک یتیم لڑکا تھا، جس کے سر پر صرف اپنی ماں کا ہاتھ تھا، اور آج وہ اپنے بلبوتے پر شہر کا نامی گرامی بزنس مین بن چکا تھا، لیکن اس نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا تھا کہ کسی کی زندگی کی خاطر اپنی زندگی کو برباد کرنے کا۔ وہ اپنی زندگی من پسند طریقے سے گزارنے والا شخص تھا، لیکن آج اسے خود پر ضبط کرنا پڑا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی وہ اٹھ کر گھر سے بھی باہر نکل گیا، اور اس وقت یہاں بیٹھنا اسے بے حد برا لگ رہا تھا، اور وہ ایک پل بھی ان سب لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ دوسری جانب اس لڑکی کے جذبات میں مختلف تھے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ اسے وہ شخص ملنے جا رہا تھا جس شخص کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی تھی۔ یہ سچ تھا کہ یزدان درانی ایک عرصہ اس کی دھڑکنوں پر رقص کرتا رہا۔ ابھی اس کی عمر صرف 22 سال تھی، لیکن اس نے بچپن سے ہی اپنی دادی کے منہ سے یہی لفظ سنے تھے کہ یزدان اس کا دلہا ہے، اور انہی لفظوں کو اس نے اپنی دھڑکنوں پر ضبط کرتے ہوئے خود کو ہمیشہ یزدان کے نام کیے رکھا۔ حالانکہ وہ گاؤں کی ایک کم پڑھی لکھی لڑکی تھی، جو شہر کے اصولوں سے ناواقف تھی، جبکہ وہ شہر کا جانا مانا بزنس مین، بے حد ہینڈسم اور شاندار پرسنالٹی کا مالک شخص اس سے ذرا برابر میل نہیں کھاتا تھا۔ نہ جانے مقدر ان دونوں کو آزمانے پر کیوں تلا ہوا تھا۔ ابھی کل ہی اس کے باپ کا اچانک ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا، اور آج اسے یزدان درانی کے سر پر مسلط کر دیا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ رشتہ زبردستی ہو رہا ہے، اس میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں کہ یزدان اسے تسلیم کر لے گا، لیکن دادی کو انکار کرنے کے باوجود اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ اب اس بات کو سمجھتی تھی کہ اس کا کوئی سہارا نہیں بچا، اور دادی کو تکلیف دینے کے بعد شاید وہ بالکل ہی تنہا رہ جائے۔ اور اس کی ماں کا انتقال اس وقت ہو گیا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کی دادی نے پال پوس کر اسے جوان کیا، اور اس کے باپ نے بھی صرف اس کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ انہوں نے کبھی دوسری شادی نہ کی، جبکہ دوسری جانب احمد یزدانی اس کا تایا تھا، اور اس کے تایا کا انتقال بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں تقریباً
3 سال پہلے ہوا تھا۔ اس کی دادی کے 2 جوان بیٹوں کے انتقال کے بعد وہ بوڑھی عورت بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ یزدان نے اپنے باپ کی وفات کے بعد کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ کبھی کبھار وہ دادی جان سے بات چیت کر لیا کرتا۔ وہ بھی یزدان سے کافی محبت کرتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ یزدان ان کے پاس آتا جاتا رہا کرے، لیکن مصروفیت اس قدر زیادہ ہوتی کہ اسے چاہنے کے باوجود وقت ہی نہ ملتا۔ لیکن اب اپنے چچا کے انتقال کے بعد وہ نہ صرف یہاں آیا تھا اور ان کی باعزت طریقے سے تدفین کی تھی اور بیٹا بننے کی ساری ذمہ داری نبھائی بھی تھی۔ اس کے بعد اس نے دادی جان سے کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ شہر چلیں، جبکہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر شہر جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں جب تک اسما کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو جاتی میں شہر نہیں جا سکتی یزدان، لیکن دی جان وہاں بھی اچھے اور معقول رشتے مل جائیں گے۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی بس اپنی نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہ تھے۔ رشتے تو مل جائیں گے، لیکن حسن کی خواہش تھی کہ اسما تمہاری دلہن بنے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ تم اسما کو اپنا لو اور اس کے بعد ہم دونوں کو شہر لے جاؤ کہ تم سے زیادہ کسی بھی شخص کے پاس وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اور اسے حقیقت میں جھٹکا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی جان؟ اسما اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ بھڑکا تھا اور اسما خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایسے ہی کہے گا، اور اب وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ اور جوڑ بنانے سے بنتا ہے، اور ویسے بھی قسمت میں لکھا ہو تو جوڑ خود بخود بن جاتے ہیں۔ یہ بس تمہاری باتیں ہیں، میں ان باتوں کو نہیں مانتی۔ اسما خوبصورت ہے، تمہارے چچا کی بیٹی ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ دی جان کی باتوں سے تنگ آ کر پلٹنے والا تھا جب شگفتہ بیگم نے اس کے قدموں کو مضبوطی سے جا کر دیا۔ کیوں نہیں؟ دی جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تم اسما سے نکاح کرو گے تو وہ محفوظ ہاتھوں میں آ جائے گی، اور ویسے بھی وہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا۔ قابل محبت لڑکی ہے، اور پھر تم کیوں انکار کرے جا رہے ہو یزدان؟ اور سریا بیگم نے حیرت سے پلٹ کر اپنی بہو کو دیکھا، جسے آج تک وہ بہو کے طور پر تسلیم نہیں کر پائی تھی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر بے جا ظلم اور زیادتی کرتی تھی، لیکن آج تک وہ ان کے دل کے قریب نہیں ہو پائی۔ چاہے وہ نرمی سے بات کر بھی لیا کرتی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح انہوں نے اسما کی ماں کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے وہ مقام نہیں دے پائی، لیکن آج شگفتہ بیگم کی بات سن کر وہ حیران ہونے سے زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شگفتہ کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ابھی ان کا دکھ تازہ تھا اور انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کی میت کو دیکھا تھا، اور شگفتہ ہی ان کا سہارا تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، اسے سمجھاؤ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور شگفتہ نے بھی نرمی سے ان کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ یہ ایسے ہی کرے گا جیسا آپ چاہیں گی۔ کل صبح ہی اسما اور یزدان کا نکاح ہے، آپ تیاریاں کیجیے۔ انہوں نے تو گویا سریا بیگم کو اتنا یقین دلا دیا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، اور پہلی بار انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ ان کی بیٹی ہے، بہو نہیں۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے ماں کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن پھر ایسا کچھ ہوا تھا کہ اگلی صبح اسے نکاح کے لیے راضی ہونا پڑا، اور نکاح ہو چکا تھا۔ اور نکاح ہونے کے بعد اسما کو ایک بار پھر کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دادی نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ اپنی ساری پیکنگ کر لے اور ان کے بھی سارے کپڑے سمیٹ لے۔ اب اس گھر کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، جبکہ اس کا دل اس وقت چھلنی ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا نہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر کو یوں الوداع کر دے گی۔ اس گھر کو چھوڑنا اسے سب سے زیادہ مشکل کام لگ رہا تھا، جہاں اس کے بابا کی یادیں موجود تھی، لیکن اب قسمت کا فیصلہ تھا سو اسے حامی بھرنا پڑی۔ وہاں موجود دوستوں نے اس کی مقدر کی تعریف کرتے ہوئے اسے صبر کرنے کی نصیحت کی تھی، اور اسے بتایا تھا کہ خدا نے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھایا ہے تو اسے ایک شہزادے سے نواز دیا ہے، اتنا خوبصورت شہزادہ جو کسی بھی لڑکی کے دل کی تاروں کو چھیڑ دے، اور اتنا امیر شخص جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ لڑکیاں نہ جانے کتنی دیر رشک بھری باتیں کرتی رہی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس رشتے کی حقیقت کو اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی بھیگی بھیگی شرمیلی باتوں سے اس کے اندر موجود احساسات انگڑائی لے رہے تھے۔ اتنے دکھ کے باوجود یہ احساس دل فریب تھا کہ وہ شہزادہ اسے میسر آ چکا تھا۔ اگر اس نے نکاح کر لیا تھا تو ضرور اس میں اس کی مرضی شامل ہوگی، تبھی تو اس نے اسما سے نکاح کی حامی بھری۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے دنیا جہاں کی ہر خوشی لا دے، لیکن اس وقت اسے اتنی منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنے ذہن میں آتی ہوئی سوچوں کو چھٹک کر وہ اٹھ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اس وقت اسے اپنے بابا کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ شگفتہ بیگم اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ جب ان کی نند نائلہ نے دروازہ کھولا اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔
یہ کیا کیا ہے آپ نے بھابھی؟ مجھے آپ کی اس چال بازی کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے مجھے زبان دی تھی کہ آپ عیشا کو اپنی بہو بنائیں گی، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ عیشا یزدان کو کتنا پسند کرتی ہے، تو پھر اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسما کا نکاح یزدان سے کروا دیا اور میری بیٹی کی خوشیوں کو نگل لیا۔ نائلہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہاں اپنے بھائی کی وفات کے حوالے سے آئی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اسما اور یزدان کا نکاح ہو جائے گا۔ جبکہ شگفتہ بیگم نے کڑی نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو مقابل شگفتہ تھی جس سے کسی کی اونچی آواز بھی برداشت نہ تھی، جبکہ نائلہ اسے دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر گئی، لیکن اس کے چہرے کی زرد رنگت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا خون کس قدر کھول رہا ہے۔ اگر عشا کی محبت میں اتنی ہی طاقت ہوئی تو یزدان کو اپنا لے گی۔ شگفتہ بیگم کی بات سن کر نائلہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، اور اگلے ہی پل وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو چھو لیا، لیکن پھر بھی اس کا دل اداس تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عشا قیامت برپا کر دے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ یزدان کسی اور کا ہو چکا ہے، اور اسی شام ہی وہ پیکنگ کر کے گاڑی پر شہر روانہ ہو گئے تھے۔ اس گھر سے جاتے وقت وہاں نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی، اور یزدان اسے کوف سے دیکھتا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو لڑکی اس کے گلے پڑی ہے اس کی زندگی کو برباد کر دے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی بھر نہیں چل پائے گی، اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ تھا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ اب اگلی زندگی میں جو ہوتا دیکھا جاتا، لیکن اس وقت وہ سب سے شدید ناراض تھا، خصوصی طور پر اپنی ماں سے، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ گھر جاتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھکاوٹ اور بے چینی سے اس کا برا حال تھا، جبکہ شگفتہ بیگم نے ملازمت سے کہہ کر دی جان کے لیے کمرہ صاف کروا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسما کو ہدایت کی تھی کہ وہ یزدان کے کمرے میں چلی جائے۔ اس وقت وہ جس شدید غم سے گزر رہی تھی اسے اندازہ نہ تھا کہ اسے اتنا جلدی اس دوسرے رشتے سے منسلک کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا، لیکن اب اس کی تائی نے حکم دے دیا تھا، سو وہ وہیں کھڑی اپنی دادی کا چہرہ دیکھتی رہی، اور تبھی سریا بیگم نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ یہی زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی کا آغاز صبر سے کرتے ہیں۔ تم نے یزدان کے دل میں بھی خود جگہ بنانی ہے میرا بچہ۔ اگر یزدان تم سے کوئی کڑوی بات کہہ بھی دے تو اس کا اثر اپنی میٹھی زبان سے ختم کر دینا۔ عورت کی میٹھی زبان مرد کو جلد اپنی جانب مائل کر دیتی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور تمہارا بن جائے گا۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ ان کے پوتے نے کتنی بے دلی سے یہ رشتہ جوڑا ہے، اسی لیے شاید اسما کی گھبراہٹ اس کے دل پر بھی برپا تھی۔ اسما نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر صورت میں کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گی، اور دادی سے ملنے کے بعد وہ واقعی یزدان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت کمرے کا دروازہ بند تھا۔ آہستگی سے دستک دیتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ دروازہ لاک نہیں۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ پورے وجود میں کپکپاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں اس حق سے آئے گی، اور وہ بھی اس طرح سے۔ بچپن سے ہی دلہن بننے کا شوق تھا، لیکن اب باپ کے ساتھ سارے شوق مر گئے۔ عموماً لڑکیوں کے شوق اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب ان کا باپ جوانی میں انتقال کر جائے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب تو صرف زندگی کے ساتھ کمپرومائز ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ جیسے ہی اندر آئی مقابل اپنی نیند سے بیدار ہو گیا۔ شاید وہ نیند کا کچا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی خمار زدہ آنکھوں کو کھول کر پلٹ کر اسے دیکھا، اور پھر پلک چھپکتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، جیسے اسے یقین آیا ہو کہ وہ اس وقت اس کے کمرے میں بیگ کے ساتھ موجود تھی۔ ملازمہ کچھ دیر پہلے ہی بیگ دروازے کے سامنے رکھ کر گئی تھی، کیونکہ جس وقت وہ سو رہا ہوتا ہے اس وقت اندر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہ ہوتی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے چلا آیا اور اگلے ہی پل سختی سے اس کے بازو کو دبوچ لیا۔ یہاں کس کی پرمیشن سے آئی ہو تم؟ وہ گھرا رہا تھا، جبکہ وہ بس بڑی بڑی آنکھیں کھولے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تائی امی نے کہا ہے، اس نے بے حد آہستہ آواز میں کہا، اور مقابل نے کھینچتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر آئی تو کسی بھی چیز پر اپنا حق ظاہر کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ آنکھیں کھولے اس بڑے سے شاندار کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ تایا کے گھر آئی تھی۔ تایا کے گھر وہ اس وقت آئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی، اور اس وقت اس کے بابا بھی ساتھ تھے۔
लेकिन उसके बाद उन लोगों का रवैया उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, सो उसने दोबारा यहाँ आना गवारा न किया और एक बार फिर यहाँ आकर वो तस्लील का निशाना बन रही थी। इन चीज़ों को देख रही हो और मुझे भी देखो, ये सब कुछ तुम्हारी औकात से बढ़कर है और ये गलत फहमी दिल में कभी मत पालना कि ये सब कुछ तुम्हें मुयस्सर आ चुका है, वो भी सिर्फ मेरे नाम के ज़रिए। इन्हें पाना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए। ना मैं तुम जैसी बीवी डिज़र्व करता हूँ और ना ही तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती हो। निकल जाओ यहाँ से। वो हैरत ज़दा थी और वो शख्स उसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने के बाद अपने कमरे से निकाल रहा था। उसे हर हक से महरूम करते हुए वो खुद से दस्तबरदार कर रहा था। वो गंदमी रंगत वाली कम पड़ी हुई लड़की बड़ी सी शॉल में खुद को लपेटे हुए बस होंक बनी उसे देख रही थी, जैसे कहने सुनने का कुछ बाकी न रहा हो। उसकी भीगी भीगी नज़रें भी उसका दिल नर्म नहीं कर पा रही थी और दूसरे ही पल वो पलटने लगी जब उसने एक बार फिर उससे खींचा था। बता देना दादी को ये रिश्ता सिर्फ एक नाम की बुनियाद पर कायम है और जिस रोज़ तुमने इस नाम की हद को फलांगना चाहा उस रोज़ इस नाम से भी आज़ादी मिल जाएगी। और उसका दिल होल उठा था। उसे आज़ादी ही तो नहीं चाहिए थी। किस्मत का शायद यही फैसला था कि उसे उस शख्स से लगाव था और ये लगाव वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ने वाला था। जिस वक्त वो अपने सामान के साथ कमरे से बाहर निकली, मुकाबिल ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। उसने पलट कर शगुफ्ता बेगम की जानिब देखा जो उसे तंज़िया नज़रों से देख रही थी। कोई बात नहीं बच्चे, ये तो अब तुम्हारी ज़िंदगी में चलता रहेगा। दादी के कमरे में चली जाओ और उनको कुछ भी बताने से गुरेज करना। बस यही कहना कि तुम दोनों को वक्त चाहिए। वो खामोशी से सुरैया बेगम के कमरे में चली गई। सुरैया बेगम उस वक्त जाए नमाज बिछाकर नमाज की तैयारी कर रही थी। उसे आता हुआ देखकर एक पल के लिए ठटक गई और दूसरे ही पल वो खामोशी से बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, चाहे इत्मीनान बनावटी था, लेकिन एक पल को उसकी दादी को अंदेशों ने मुब्तला कर दिया था। क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई हो? उन्होंने उसका बैग देखा। मैं आपके साथ ही रहूँगी। मुझे और यज़दान को अभी इस रिश्ते के लिए वक्त चाहिए, लिहाजा बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे को वक्त दें। आप नमाज अदा कर लीजिए ताकि फिर मैं भी नमाज अदा कर लूँ। उसने उनके अंदेशों और ख़दशों को नज़रअंदाज कर दिया था। वो तफसील में जाने की कायल न थी और सो दादी को भी खामोशी इख्तियार करना पड़ी और उन्होंने नमाज शुरू कर ली। लेकिन उस वक्त उनके दिल में अजीब से होल उठ रहे थे। दादी से छुपकर न जाने वो कितनी देर रोती रही। उसका गुनाह यही था कि वो गरीब बाप की बेटी थी और मॉडर्न नज़र नहीं आती थी, बल्कि सादा से हुलिये में वो कम पढ़ी लिखी लड़की जो शायद उसके वजूद के लिए सिर्फ शर्मिंदगी का बाइस थी। अगर उसे यकीन होता कि वो उससे इतनी नफ़रत करता है तो शायद वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में कदम न रखती। लेकिन अब ये सब कुछ हो चुका था। उसने ख़ुद को यकीन दिलाया था कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसके दिल में जगह बना लेगी। लेकिन ये यकीन उस वक्त जो उसने शाम ही उसके घर में ईशा की आमद देखी। ईशा हद से ज़्यादा मॉडर्न लड़की थी और शगुफ्ता बेगम ने जिस वक्त अहमद दुरानी से निकाह किया था उस वक्त वो दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और आखिरी सेमेस्टर में ही उन दोनों ने निकाह कर लिया। शगुफ्ता का बाप उस सब के लिए राज़ी था, सो शगुफ्ता को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़ा। लेकिन सुरैया बेगम चाहती थी कि अहमद यसानी अपनी हैसियत के लोगों में शादी करे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें शगुफ्ता पसंद थी और उन्होंने शगुफ्ता का इंतखाब किया। लेकिन उसके बाद भी सिलसिला चलता रहा जब तक कि नाइला ने शगुफ्ता के भाई आमिर के साथ ताल्लुकात बना लिए और बिलाखिर आमिर ने भी नाइला से शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। और एक बार फिर उसी दरवाज़े पर शगुफ्ता के बाप को बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आना पड़ा और सुरैया बेगम ने नाइला की पसंद से मजबूर होकर एक बार फिर ये रिश्ता जोड़ दिया था। और तब से ही नाइला शगुफ्ता के ज़ेरे असर थी। इस घर में उनका जाना हद से ज़्यादा था और यहीं से ईशा की पसंदीदगी का भी आगाज़ हुआ। शगुफ्ता बेगम के इकलौते बेटे को दिल देने से ज़्यादा वो उसकी दौलत पर हुक्मरानी करने की ख्वाहिश रखती थी और यज़दान उसका जुनून और उसकी ज़िद था और यज़दान की हद से ज़्यादा मगरूरी। घर में दोनों तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई थी और वो भी फिल वक्त खामोश थी। उसने यज़दान का सामना ना किया था। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके सामने जाए और तज़लील का निशाना बने। उस वक्त वो किचन में दादी के लिए चाय बना रही थी जब ईशा दंदनाते हुए किचन में दाखिल हुई और आते ही उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ झाड़ दिया। मुलाज़िमा के सामने उसे संभलने का मौका ही ना मिला और उस पर यह अचानक हमला उसे अच्छा खासा बौखलाहट का शिकार कर गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ईशा इस दर्जे की बदतमीज़ होगी। तुम जाहिल पेंडू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एहसान की ज़िंदगी में आने की?
जबकि तुम्हें पता है कि यज़दान सिर्फ मेरा है। वो उस वक्त ट्राउज़र शर्ट में मलबूस इतनी शिद्दत से चीख रही थी कि शगुफ्ता बेगम को भी उस किचन में आना पड़ा। दादी को जल्दी सुनाई नहीं देता था और वैसे भी वो अपने कमरे में थी, इसलिए ये तमाशा उन्होंने ना देखा, जबकि वो भीगी भीगी आंखों से ईशा का चेहरा देख रही थी। शगुफ्ता बेगम ने बस दरवाजे से उन दोनों को देखा और पलट गई। असल जंग का आगाज़ तो अब हुआ था और अब वो इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती थी। ईशा ने दूसरी बार हाथ बढ़ाते हुए उसे बालों से जकड़ लिया। मैं तुम्हें ज़िंदा जला दूंगी अगर तुमने कोशिश की कि यज़दान के करीब भी जाने की। ये निकाह सिर्फ़ और सिर्फ यज़दान की हमदर्दी की वजह से हुआ है, लेकिन अगर तुमने उसे अपना शौहर समझने की गलती भी की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि ईशा कौन है, क्योंकि यज़दान मेरी मोहब्बत है। वो चीखते हुए उसे दीवार के साथ लगाए खड़ी थी, जबकि मुलाज़मा भी हैरानगी से उन दोनों को देख रही थी। उसने रोते हुए ईशा के हाथों को थाम लिया। वो खुद को छुड़वाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशा पर गुस्सा सवार था। बदतमीज़ी की हर हद पार करते हुए उसने उसे बुरी तरह झाड़ दिया था और उसने नानी से मिलना भी गवारा न किया। उसके बाद वो उसे घसीटते हुए शगुफ्ता बेगम के कमरे में लेकर गई। पुप्पो, इसे मेरी जगह पर खड़ा होने का हक आपने दिया है, लेकिन मैं आपके सामने कसम खाती हूँ कि मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। वो रोते हुए शगुफ्ता बेगम का चेहरा देख रही थी, जो इतनी सफाकियत पर कैसे उतर सकता था। बज़ाहिर नर्म दिल नज़र आने वाली औरत इस हद तक जा सकती थी, उसे अंदाज़ा भी न था। एक बाप के बाद औरत का असली सहारा उसका शौहर होता है, और जब शौहर भी रुख फेर ले तो फिर औरत लावारिस हो जाती है, और शायद वो अब लावारिस हो चुकी थी। शगुफ्ता बेगम ने ईशा को मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी कि वो जब भी उसकी पीठ पीछे उस पर जो भी जुल्म ढाए उसे ज़ुबान बंद रखने का हुक्म था। हालांकि दादी को कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन उनके पूछने पर वो इनकार कर देती। वो अपनी इस शफीक दादी को खोकर एक ऐसी हस्ती को नहीं गंवा सकती थी, जो हस्ती अब उसके पास आखिरी सहारा थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो हद से ज़्यादा यज़दान के करीब होती जा रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता यज़दान के कामकाज को अपने हाथों से करना शुरू कर दिया और वो अक्सर ही उसके कमरे की सफाई कर देती, लेकिन उसके सामने आने से गुरेज किया करती। कभी कभार अक्सर हादसाती तौर पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते तो यज़दान उससे निगाहें फेरे गुजर जाता, जबकि वो जी भर कर यज़दान को देख लेती। उस वक्त उस घर में आते हुए उसे 2 हफ्ते हो चुके थे और यज़दान की जानिब से कोई भी गैर इखलाकी रवैया ना देखते हुए वो काफ़ी पुरुमीद हो गई। वो जानती थी कि यज़दान ईशा से राब्ते में है और शायद यज़दान भी ईशा को पसंद करता है, लेकिन उसने कभी एक साथ उन दोनों को अभी तक नहीं देखा था। और ईशा हद से ज़्यादा बोल्ड और बदतमीज़ लड़की थी। वो शगुफ्ता बेगम का ज़रा बराबर भी लिहाज न करती और न ही सुरैया बेगम का। वो बस 2 बहन भाई थे और ज़ीशान और ईशा। ज़ीशान उसका बड़ा भाई था और माँ की तरह ही उसके सारे नाज नखरे उठाया करता, और ज़ीशान की चुभती हुई नज़रों को भी उसने बस एक बार अपने वजूद पे देखा था। और ये अच्छी बात थी कि ज़ीशान और यज़दान की आपस में बनती ना थी, इसीलिए यज़दान यहाँ कम ही आता था और उसे खुशी हुई ये जानकर कि चले यहाँ उसकी इज़्ज़त तो महफूज थी। उस रोज़ वो उसके कमरे की सफाई कर रही थी जब कबर्ड खोलते ही ब्लू कलर की शर्ट उठाकर उसने देखनी शुरू कर दी। शर्ट बिल्कुल नई थी, शायद यज़दान कुछ दिन पहले ही लेकर आया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि शर्ट से निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू उसे यज़दान की नज़दीकी का एहसास क्यों दिला रही थी। गंदमी रंगत में खुलता हुआ सुर्ख रंग उसे मज़ीद हसीन बना गया। उसने मुस्कुराते हुए उसे नाक के करीब ले जाकर उसकी खुशबू को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस किया और फिर बेख्तियार ही उसे लबों से लगा लिया। यज़दान की खुशबू और उसका एहसास उसके दिल में उतरता चला गया और फिर न जाने क्या सोचकर उसने वो शर्ट दुपट्टे के पल्लू में छुपाई और अपने कमरे में आ गई। वो शख्स उसके करीब न था, उसके साथ गुर्बत का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा न था, लेकिन वो उस शर्ट को करीब रखकर उसकी खुशबू को महसूस कर सकती थी। उसने आते ही उसे अपने कपड़ों में छुपा दिया था। ये चोरी न थी, उसे अंदाज़ा था कि यज़दान की जितनी ज़्यादा शर्ट्स पड़ी हैं शायद उसे ये शर्ट याद ही ना हो, लेकिन किस्मत उसकी मुखालफत में चल रही थी। जब उस सुबह यज़दान ने पहनने के लिए शर्ट निकाली तो शर्ट गायब थी। अभी 2 दिन पहले ही वो लेकर आया था और उसे वो शर्ट हद से ज़्यादा पसंद आई थी, सो उसने तय कर लिया था कि वो मीटिंग में पहन कर जाएगा। उस वक्त उसका इरादा था कि मुलाज़मा को प्रेस करने के लिए वही शर्ट निकाल कर दे, लेकिन उसने पूरा कबर्ड खंगाल मारा, लेकिन शर्ट का नामो निशान भी ना था। मामा, ब्लू कलर की शर्ट गायब है, क्या आपने उसे देखा? लेकिन शगुफ्ता बेगम तो अनजान थी, उन्होंने तो कभी उसके कमरे में झांक कर भी नहीं देखा था। खुजा उसकी चीज़ों को संभालना,
मैंने नहीं देखा, तुम्हारे कमरे में ज़्यादातर अस्मा ही जाती है, तुम उससे पूछ लो। वो उसे बताने के बाद दोबारा मोबाइल में मशगूल हो गई और वो हैरत से खड़ा रहा। जब उसने मना किया था तो फिर वो लड़की उसके कमरे में क्यों जाती थी? आज काफ़ी दिनों के बाद वो दादी के कमरे की जाने बढ़ गया। उसका इरादा था कि वो अस्मा को ज़रूर सबक सिखाएगा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि उसने ही उसकी शर्ट को चुराया है, वरना मुलाजमत उसकी चीज़ों को हाथ तक भी नहीं लगाती थी। उस वक्त वो कमरे में अकेली थी जब एकदम से दरवाज़ा खुलने पर वो बौखला गई। जल्दी से यज़दान को देखकर वो उठ खड़ी हुई। दुपट्टा दूर ही बेड पर पड़ा हुआ था और इससे पहले कि वो आगे बढ़ते हुए अपना दुपट्टा उठाकर सीने पर फैला लेती, जब यज़दान जल्दी से आगे बढ़ा और उसे खींचते हुए अपने करीब कर लिया। तुमने मेरे कमरे से मेरी शर्ट चुराई है ब्लू कलर की, मुझे बताओ कहाँ है वो? और अस्मा का चेहरा जर्द हो गया। उसके चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत से ही यज़दान को अंदाज़ा हो गया कि शर्ट उसी के पास है, जबकि बेइख्तियार ही उसने अपने सीने को मुट्ठियों में भींच लिया। उसने नज़रों को झुका लिया था। उसने आज तक झूठ नहीं बोला था, तो उस वक्त यज़दान की पहरा देती हुई नज़रों के सामने वो कैसे झूठ बोल सकती थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में जाकर मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की, जब मैंने तुम्हें मना किया था? और सबसे बड़ी बात ये कि तुमने उसे चोरी किया। और उसने जल्दी से नफ़े में सर हिला दिया। मैंने चोरी नहीं की, मैंने वो बस अपने लिए उठाई थी। और यज़दान तंजिया नज़रों से उसे देखने लगा। यानी तुम्हें अब शर्ट पहनने का शौक चढ़ा है, या फिर तुमने मेरी वो शर्ट पहन रखी है? यकीनन तुमने कमीज़ के नीचे पहन रखी होगी। उसने इतनी बेबाकी से कहा था कि वो शर्म से सुर्ख हो गई। बेइख्तियार ही वो पीछे हटने लगी जब मुकाबिल ने उसे बाजू से खींचकर करीब कर लिया और फिर उसके कान के करीब गुर्राया। मेरे कमरे में आओ और मुझे अभी और इसी वक्त अपनी तलाशी दो। अगर मेरी शर्ट तुम्हारे बदन पर मौजूद हुई तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। और उसकी कुर्बत से ही वो कँपा उठी थी। उसे अंदाज़ा न था कि वो इतने गुस्से का इजहार करेगा। शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जबकि वो खींचता हुआ उसे अपने कमरे में लेकर गया और कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया था। उसे बेड पर फेंकते हुए वो कदम उठाते हुए उसके करीब चला गया। उतारो कमीज़ और दिखाओ मुझे, कहाँ है मेरी शर्ट? जबकि वो हैरत से उस शख्स का चेहरा देख रही थी, जिसे इतना भी अंदाज़ा न था कि वो किस लहजे में बात कर रहा है। क्या देख रही हो? बीवी हो तुम मेरी और हक रखता हूँ मैं तुम पर। जल्दी करो वरना मैं खुद देख लूँगा। जबकि वो सर झुकाए बस सुर्ख चेहरा लिए बैठी रही। उसमें इतनी हिम्मत न थी कि उस शख्स की वालिहाना नज़रों का मुकाबला करती। और तभी यज़दान ने झुकते हुए उसे कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया। मैं खुद ही देख लेता हूँ, उसने बेहद नरमी से कहा था। उस वक्त उसके सामने अस्मा न थी, जिसे वो पसंद नहीं करता था। उसके सामने एक छोटी सी मासूम लड़की सर झुकाए खड़ी थी, जिसे वो फुर्सत से देख रहा था और उसका भरा भरा वजूद उसे शिद्दत से अपनी जानिब खींच रहा था। उसके जिस्म के नशीबो फराज उसके सामने आया थे। मोटी चूटियाँ कमर पर बिखरी हुई थी और सुराहीदार गर्दन पर पहना हुआ एक छोटा सा पेंडेंट उसे बुरी तरह से मुतवज्जो कर रहा था। उसने आहिस्तगी से झुककर उसकी कमीज़ को थोड़ा सा उठाया, जब अस्मा शिद्दत से चीख पड़ी, प्लीज़ मैंने आपकी शर्ट नहीं पहनी, वो तो कमरे में पड़ी है, प्लीज़ मैं आपको अभी ला कर देती हूँ। उसने इतना जल्दी कहा था कि बामुश्किल ही मुकाबिल ने अपनी मुस्कुराहट को ज़ब्त किया और फिर उसके सामने ही वो बोतल के जिन की तरह गायब हो गई। और थोड़ी देर के बाद वापस आई तो वो शर्ट उसके हाथ में थी। इस बार उसने दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर ओढ़ा था, जबकि चेहरे की रंगत अभी भी सुर्ख थी। और शर्ट लेते हुए उसने दानिस्ता तौर पर उसकी हथेली को भी थाम लिया और फिर उसे अपने करीब कर लिया था। अभी से तुम्हारा ये हाल है, जबकि मेरी बीवी बनने की ख्वाहिश तो तुम्हारे जिस्म में अंगड़ाई ले रही थी। उस वक्त क्या होगा जब मैं तुम पर अपना हक जाहिर करूँगा? वो बेहद सरगोशी में कहते हुए आहिस्तगी से उसके लबों को छू गया। उस वक्त उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि वो उस लड़की से दूर रहना चाहता है। वो लड़की उसकी आइडियल नहीं है और ना ही वो इस तरह की बीवी डिज़र्व करता है। वो उसके सामने ही खुले लफ्ज़ों में कह चुका था कि वो उसे कभी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा। और ये बात अब उसकी अना के ख़िलाफ़ है कि वो उसकी नौखीज़ जवानी को देखकर पिघलता जा रहा है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन मुझे आपकी ख्वाहिश का एहतराम है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी लड़की से शादी करें, लेकिन मेरे नाम से अपने नाम को अलग मत कीजिएगा। उसने भीगी भीगी पलकें उठाकर उसका चेहरा देखा था और उस लम्हे वो हद से ज़्यादा मासूम लगी। तो फिर ऐसा करो कि ये घर छोड़कर चली जाओ। इस रिश्ते से आज़ाद नहीं होना चाहती तो फिर मेरी नज़रों से दूर रह जाओ, ताकि मुझे किसी और का होता हुआ देखकर तुम्हें ये सितम बर्दाश्त ना करना पड़े। उसने झुकते हुए सरगोशी में कहा था।
जबकि वो दुख भरी नज़रों से उसे देखती रही। इस घर से मैं कभी भी नहीं जा सकती और ये मेरा वादा है आपसे, मैं हमेशा यहीं रहूँगी और आपके सामने। आपको किसी और का होता हुआ देखना अगर मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लूँगी। कभी कभार हमें इन चीज़ों से दस्तबरदार होना पड़ता है जिनसे दूर जाने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे बाबा। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी और न जाने उसने क्यों खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा दिया। वो शिद्दत से रो रही थी और वो उसकी हमदर्दी में पिघलता जा रहा था। प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरा कहने का वो मकसद नहीं था, प्लीज़ चुप हो जाओ। वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था और अगले ही पल वो उसे छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। न जाने कितनी देर वो अफसरदगी से दरवाजे को देखता रहा और फिर सर झुकाकर उस शर्ट को देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैले हुए थे और दिल अजीब सी अफसरदगी का शिकार था। तभी उसके मोबाइल पर ईशा की कॉल आने लगी। उसने सर झटकते हुए मोबाइल उठा लिया और आज मीटिंग के बाद उसने ईशा के साथ शॉपिंग पर जाना था। ईशा ने कब से ज़िद लगा रखी थी कि वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाए और मजबूरन उसे उसकी बात मानना पड़ी। शगुफ्ता बेगम ने भी कहा था कि वो ईशा से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाए क्योंकि ईशा के साथ साथ शगुफ्ता बेगम भी उसे पसंद करती है। उसने माँ से ये सवाल किया था कि उन्होंने उस लड़की को उसकी ज़िंदगी में दाखिल करके उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, लेकिन उन्होंने ख़ुद से इजाज़त दी थी कि वो दूसरी शादी कर सकता है और उसके लिए उसकी दादी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अभी तक उसने दादी से इस हवाले से कोई बात ना की थी और अब इस लड़की की बात सुनकर भी वो काफ़ी हल्का फुल्का हो गया। यानी अगर वो ईशा के साथ ताल्लुकात रखता और फिर उसके साथ शादी कर लेता तो वो लड़की उसकी ज़िंदगी से जाने वाली ना थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि ईशा उसे कैसे बर्दाश्त करेगी क्योंकि वो ईशा के जुनून से अच्छी तरह वाकिफ़ था। 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करने के बाद उसे एक बार फिर ईशा की कॉल आई और ना चाहते हुए भी वो उसके साथ शॉपिंग पर चला गया। वो बज़ाहिर तो ईशा के साथ था, लेकिन न जाने क्यों उसका जहन बार बार अस्मा की जाने भटक रहा था। क्या बात है, आज तुम दिल से मेरे साथ शॉपिंग नहीं कर रहे? क्या तुम मेरी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे? ईशा मटकते हुए उसके करीब चली गई। उस वक्त वो जिस हुलिये में थी वो सर से पैर तक उसे देखता रहा और झमाके से उसके दिमाग में अस्मा का अक्स उभर आया, वो जो उसके सामने भी दुपट्टा उतारने से गुरेज करती थी। ऐसी बात नहीं है, मुझे जल्दी घर वापस जाना है, इसीलिए जल्दी से जो कुछ लेना है ले लो, उसने संजीदा लहजे में कहा और ईशा का अच्छा खासा मूड बन गया था। क्या शादी के बाद भी तुम इस तरह से मेरे साथ शॉपिंग पर आओगे, यूं बेदिली से, मगरूरी से? यज़दान की यही अदा तो उसे घायल कर देती थी। वो हद से ज़्यादा संजीदा रहने वाला शख्स कब उसकी पनाहों में आ जाता, उसे शिद्दत और बेताबी से इंतज़ार था जब वो इस पर हुक्म चलाकर उस पर अपनी मालकियत जाहिर करती। लेकिन अब दरमियान में आने वाली उस लड़की का कांटा उसने सबसे पहले निकालते हुए उसे अपनी ज़िंदगी से 9-2-11 करना था और ये सब कुछ करने से पहले उसे यज़दान को अपना बनाना था ताकि कोई भी रुकावट दरमियान में हायल ना हो। उस रोज़ उसने शगुफ्ता बेगम की हल्की फुल्की शॉपिंग करते हुए उसने नामहसूस तरीके से चंद एक चीज़ें अस्मा के लिए भी ले ली थी और उन्हें गाड़ी में रखवा दिया था और ईशा ने ज़्यादा उसकी जानिब ध्यान न दिया। मैं चाहती हूँ कि अब हम जल्द से जल्द मंगनी कर लें ताकि ऑफिशियली मेरा नाम तुम्हारे नाम से मंसूब हो जाए। ईशा ने झुकते हुए उसके कंधे पर सर रखा जबकि वो मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग की जानिब मुतवज्जो था। अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं, हम इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ईशा बज़िद थी। मैं आज ही बाबा से बात करने वाली हूँ और हम जल्द से जल्द मंगनी करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस लड़की के करीब चले जाओ और फिर हमारे दरमियान फासले आ जाए। यानी वो नहीं चाहती थी कि वो अस्मा के करीब हो, लेकिन मोहब्बत ये ना थी। मोहब्बत दस्तबरदारी का नाम है। वो लड़की उससे दस्तबरदार होने के लिए भी तैयार थी। बज़ाहिर खामोशी से ईशा की सारी बातें वो सुनता रहा, लेकिन उसके जहन की स्क्रीन पर उस वक्त कोई और ही अक्स चल रहा था। ईशा को घर ड्रॉप करने के बाद वो अपने घर आ गया और मुलाजमा के हाथ उसने सुरैया बेगम के कमरे में वो चंद जोड़े और कुछ मज़ीद चीज़ें भिजवा दी थी और मुलाजमा को ताकीद की थी कि वो ये ना बताए कि ये सब कुछ वो लेकर आया है, बल्कि वो शगुफ्ता बेगम का नाम ले ले। और मुलाजमा ने भी ऐसा ही किया। वो नहीं चाहता था कि उसके सामने उसकी इमेज ख़राब हो और वो लड़की ये ना सोचे कि वो उसकी जानिब कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईशा ने घर में मंगनी की बात कर दी और अगले ही दिन नाइला बेगम अपने शौहर के हमरा उनके घर तशरीफ़ ला चुकी थी। उन्होंने शगुफ्ता बेगम के कान में बात डाल दी, जबकि सुरैया बेगम ने अच्छा खासा हंगामा कर डाला था। ऐसा कैसे हो सकता है? यज़दान शादीशुदा है और उसका निकाह हो चुका है, तो दोबारा वो ईशा से शादी कैसे कर सकता है?
वो तो हैरान और परेशान अपनी पोती के हक़ में थी, जबकि उसने मुस्कुरा कर दादी का हाथ थाम लिया और आप मेरे साथ मेरे कमरे में आइए दादी जान, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। और वो हैरत से अपनी पोती का इत्मीनान देख रही थी, जो ज़रा बराबर भी ज़ायल नहीं हुआ था, और वो खामोशी से उन्हें कमरे में लेकर चली गई। ये मेरा फ़ैसला है, मैंने खुद यज़दान को इजाज़त दी है और ये उसका हक़ बनता है कि वो मुझ पर कनात ना करे, लेकिन तुम में क्या कमी है? मुझे तुमसे इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद ना थी। दादी अच्छा खासा नाराज़ हो चुकी थी। मोहब्बत दस्तबरदारी का नाम है और मोहब्बत मालकियत ज़ाहिर करने का नहीं, हक़ ज़ाहिर करने का नाम है। और मैंने अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए उन्हें इजाज़त दे दी है कि वो अपना हक़ इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी की बीवी लेकर आएँ। वो मुझे छोड़ नहीं रहे, मैं यहीं रहूँगी आपके सामने उनकी बीवी बनकर, लेकिन ये उनका हक़ है। उसने दादी को कायल कर लिया था, लेकिन वो जानती थी कि उस वक्त उसके दिल पर कौन सी क़यामत बरपा है, और सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर उसकी मंगनी की तारीख़ मुकर्रर कर दी गई। यज़दान खामोशी से उन सब की गुफ्तगू सुनता रहा और फिर उठकर कमरे में चला गया। ये सब कुछ होना था। अस्मा उसकी आइडियल लड़की ना थी। ईशा के साथ चलकर वो मुआशरे को दिखा सकता था कि उसकी बीवी कदम से कदम मिलाकर उसके साथ खड़ी है। वो ईशा जैसी बीवी ही डिज़र्व करता था, बेबाक बाएतमाद, लेकिन अस्मा जैसी घरेलू लड़की हरगिज़ नहीं। खुद को तसल्ली देते हुए उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी, जबकि घर में ज़ोरों शोर से तैयारियां चलती जा रही थी। उसे अंदाज़ा ना था कि जाने क्यों ईशा का रवैया पहले से बेहतर होने लगा था। अब वो अच्छे तरीके से ना सिर्फ बात करती थी बल्कि उस पर किसी किस्म का जुल्म भी नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी आंखों की चमक और वार्निंग उसे अजीब ही सूरत हाल का शिकार कर रही थी। न जाने क्यों उसे लगता था कि जैसे ये तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी है, और जिस रोज़ उसकी मंगनी थी उस रोज़ घर को एक खूबसूरत सजावट से सजाया गया था। सब कुछ बेस्ट था और उसी शाम एक बड़े पैमाने पर उन दोनों की मंगनी होनी थी, लेकिन यज़दान मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब से गाफिल था, या फिर उसे लग रहा था कि वो उसकी जानिब तवज्जो नहीं दे रहा। हालांकि वो चलते फिरते उस लड़की की हरकत और सकनात को नोट कर रहा था, जो बज़ाहिर तो बाएतमाद और पूरे इत्मीनान से नज़र आती थी, लेकिन उसकी आंखों की वीरानी और खालीपन उसकी नज़रों से ढका छुपा ना था। यानी वो अंदर से खोखली होती जा रही थी। अपने सामने अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाना आसान काम नहीं होता। यज़दान की खातिर वो तो ईशा को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसे यकीन था कि ईशा उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे पहले वो यज़दान की ज़िंदगी से अस्मा का नामो निशान मिटा देगी, और यही दुख उस पर हावी होता जा रहा था। उस रात भी बाहर मंगनी का फंक्शन ज़ोर शोर से जारी था, और वो अपने कमरे में खामोशी से आंसू बहा रही थी। उसने बाहर आना मुनासिब न समझा और दादी से सर दर्द का बहाना करते हुए अंदर ही रही, जबकि यज़दान की बेताब निगाहों ने उसे काफ़ी देर ढूंढा। ईशा उसके पहलू में बिजलियां गिरा रही थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और सिल्वर कलर के कामदार सूट में अब वो उसे लुभाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बेताब नज़रें इधर उधर फैली हुई थी। उस वक्त वो उस कमरे में मौजूद थी जब खिड़की से कोई कूद कर अंदर आया और आते ही उसके सामने खड़ा हो गया। मुकाबिल ने अपने चेहरे को सख्ती से ढांप रखा था। उसे सिर्फ उसकी चमकती हुई आंखें नज़र आ रही थी, और अगले ही पल उसने आगे बढ़ते हुए उसे उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे घसीटते हुए खिड़की तक ले गया। शायद बाहर भी उसकी मदद करने के लिए कोई मौजूद था। वो हाथ वहाँ चिल्लाते हुए चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने उसे सख्ती से काबू कर लिया और फिर उसे लेकर चले गए। उस रात वो अगवा हो गई, लेकिन मुकाबिल की बेताब नज़रें बस उसकी तलाशी में दौड़ती रह गई, और बिलाखिर मंगनी की रस्म से पहले वो उठकर घर के अंदर आ गया और उसने एक बार सुरैया बेगम के कमरे में झांक कर देखा और फिर देखता ही रह गया। यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। टूटे हुए कांच के टुकड़े, नीचे फर्श पर गिरा हुआ दुपट्टा और खुली खिड़की, बहते हुए चंद खून के कतरे। वो भागकर खिड़की तक आया और ऐन उसी वक्त निकलती हुई गाड़ी को उसने देख लिया था। ब्लैक कलर की गाड़ी बहुत दूर थी, अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर न आ रहा था, और फिर वो भागता हुआ बाहर निकला। उसने मंगनी के फंक्शन को बीच में ही छोड़ दिया था। उसे यकीन था कि जो भी उस वक्त उसे लेकर जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी दुश्मनी की बिना पर लेकर जा रहा है, वरना उस बेसरर सी लड़की का क्या कसूर। वो तो किसी को जानती भी ना थी। वो उस रात गाड़ी लेकर निकला और उसने कोशिश की थी कि वो उस गाड़ी का पीछा करे, लेकिन वो कामयाब ना हो पाया, जबकि दूसरी जानिब ईशा आग बगूला हो चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि वो ये फंक्शन छोड़कर चला जाएगा, और मेहमान उसका इंतज़ार करते करते यहाँ से चले गए थे, और आधी रात को वो घर लौटा। उड़े हुए बाल और जर्द रंगत और
घर आते ही वो गार्ड्स पर जिस शिद्दत से धाड़ा था, ईशा उसे देखती ही रह गई। वो तो शदीद बरहम थी कि वह मंगनी की रस्म छोड़कर चला गया और तभी वो आगे बढ़ी। तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई हो, किसी के साथ भाग गई हो। आखिर इतना बड़ा फंक्शन छोड़कर वो इस वक्त अकेले कमरे में क्या कर रही थी? मामले को समझने की कोशिश करो, ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करो यज़दान। ये गांव की अनपढ़ लड़कियां किसी की चिकनी चुपनी बातों में आकर कुछ भी करने से गुरेज नहीं करती। और वह शिद्दत से उस पर धाड़ा था। खबरदार अगर तुमने किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। उसने मुझसे वादा किया था कि वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। उसे मेरे नाम से मतलब था, तो फिर अब सिर्फ मंगनी से घबरा कर वो कैसे जा सकती है? और ईशा ने खामोशी इख्तियार कर ली। हर जगह भरपूर राब्ता कर लिया गया। उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसका कोई पता न था। सुरैया बेगम तो रो रो कर निढाल थी और घर वाले बेचैन थे। किसी को कुछ भी इल्म न था और वो तो अच्छा खासा बौखला चुका था। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो शायद वो खुद को माफ़ न कर पाता। जबकि दूसरी जानिब उसे ले जाने वाला शख्स एक फ़्लैट में लेकर गया और उस वक्त उसके सामने बैठा तफसील से उसका जायज़ा ले रहा था। वो नहीं जानती थी कि मुकाबिल कौन है, उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। और तभी उसने चीखते हुए उससे पूछा, मुझे वापस घर छोड़ कर आओ, मेरा कोई कसूर नहीं। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने दुपट्टा संभालते हुए कहा, जबकि मुकाबिल के आर पार होती हुई नज़रें उसके वजूद को निशाना बनाते हुए थी। और फिर उसने मुंह से कपड़ा हटा दिया, जबकि वो उसकी आंखों में देखती रह गई। उसका पूरा वजूद काम कर रह गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके अपने ही उस पर इस कदर जुल्म ढा सकते थे। उसे बाप के घर से कदम उठाना ही नहीं चाहिए था और उस शख्स की ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था जहाँ उसकी इज्जत भी महफूज न थी। और उस रोज़ वो तसव्वुर भी झाग की तरह बैठ गया कि उसकी ज़िंदगी में आकर वो महफूज थी। और तभी उस शख्स ने उस लालच भरी नज़रों से देखते हुए उसके करीब होना शुरू कर दिया। खुदा के लिए मेरे करीब मत आना, मैं किसी की बीवी हूँ और तुमसे भी तो मेरा रिश्ता है। जबकि वो गुर्राते हुए उसे देख रहा था। मुझे हुक्म है कि मैं तुम्हारे करीब ना हूँ, लेकिन तुम्हारी जवानी को देखकर रहा ही नहीं जा रहा जब तक कि तुम्हें अपने हाथों से एक दफ़ा मसल ना दूँ, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वादा, उसने खबासत से हंसकर कहा और अगले ही पल उसे सख्ती से दबोच लिया। उसने चीखते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो फड़फड़ा कर रह गई। और फिर कुछ ही लम्हों में उसने उसे मुकम्मल ज़ेर कर दिया। आज उसने वो इज्जत भी गंवा दी जिसकी हिफाजत करते करते उसका बाप मर गया था और जिसकी हिफाजत के लिए वो उस शख्स के दर पर पड़ी रहना चाहती थी। उस रोज़ मुकाबिल ने उसे ज़िंदा लाश बना दिया। उस रात उसने उसे दीवानों की तरह ढूंढा था और उसने सब कुछ खंगाल मारा, लेकिन वो कहीं ना मिली और उसे किसी पर शक भी ना था। ईशा ने तो कह दिया था कि वो किसी के साथ भाग गई है। उस वक्त वो लाउंज में सर गिराए बैठा था जब उसकी सुई एक जगह पर अटक कर रह गई कि उस फंक्शन में अगर वो ना थी तो एक और शख्स भी तो ना था। और उसने फटी फटी नज़रों से उस शख्स को देखा और अगले ही पल उसने सख्ती से उसकी गर्दन दबोच ली। ज़ीशान कहाँ है तुम्हारा भाई? उसने इतने सर्द लहजे में पूछा कि ईशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका शक ज़ीशान की तरफ जाएगा। तुम तो जानते हो कि वो कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करता। घर होगा और कहाँ होना है, उसे कॉल करो, वो आ जाएगा। और उसने ज़ीशान का नंबर डायल किया, लेकिन नंबर ऑफ था। और तो मेरे बेटे पर शक कैसे कर सकते हो? वो फंक्शन स्टार्ट होने से पहले यहाँ मौजूद था और उसके बाद वो घर चला गया, सबको बताकर गया था। नायला बेगम तो चीख पड़ी, खबरदार अगर किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की, मैं अभी और इसी वक्त पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम भी हवालात की हवा खाओगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी ज़ीशान के साथ ही होगी। और ईशा के चेहरे की जर्द रंगत उसकी आंखों से मख्फी ना थी। उसने हकीकत में पुलिस को कॉल कर दी थी। उसने ईशा को भी अरेस्ट कर लिया और थोड़ी ही छानबीन के बाद उसने तस्लीम कर लिया था कि ये सब कुछ उसी ने करवाया है। लेकिन उसने ज़ीशान को बस इतना कहा था कि वो उसे न सिर्फ चंद घंटों के लिए अपने पास रखे और फिर उसे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो उसे रात भर अपने पास रखेगा और फिर गायब हो जाएगा। पूरा दिन गुजर गया और बिलाखिर वो अगली शाम ज़ीशान के फ्लैट से बरामद हो गई। उस फ्लैट के मुतालिक कोई भी नहीं जानता था। शायद सबकी नज़र से बचाकर ज़ीशान ने अपनी अय्याशियों के लिए वो फ्लैट ख़रीदा था। ज़ीशान गायब था और वो जिस तरह मिली थी एक जिंदा लाश की तरह। सुरैया बेगम तो उसे देखते ही गिर गई। भूखी प्यासी 2 दिन से फ्लैट में बंद और अपनी तार तार की हुई इज्जत का जनाजा अपने नाथुआ कंधों पे उठाए वो बिलक बिलक पर रो पड़ी थी।
मुकाबिल ने आगे बढ़ते हुए उसे सीने से लगा लिया। उसे यकीन भी नहीं था कि वो लड़की अपनी इज्जत गंवा देगी, सिर्फ एक छोटी सी नफरत की बिना पर, और ये सारा कसूर उसी का था। वो चीख पड़ा था और उसने इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि इसे शाम से पहले ही ज़िशान चाहिए, हर हाल में जिंदा या मर्दा। कोई कैसे उसकी बीवी को नोच कर फरार हो सकता है? वो यज़दान दुरानी की बीवी थी और उस रोज़ उसने सबको खंगाल मारा। ये सबकी मिली जुली साजिश थी। शगुफ्ता ने उसकी शादी करवा कर ईशा को ढील दे दी और ईशा हर रोज़ ही उस पर जुल्म ढाने के लिए आ जाती, लेकिन उसके बावजूद वो खामोश थी। उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और उसकी दिमागी हालत उस वक्त ऐसी न थी कि वो घर पर रहती, और वह शदीद खौफ और हिरास और डिप्रेशन में थी, जबकि ईशा को भी उसने अरेस्ट करवा दिया था। शगुफ्ता बेगम को इस बात का अंदाज़ा न था कि ईशा अपनी नफ़रत में इस हद तक चली जाएगी कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करवा देगी, जबकि उसने अपनी पुप्पो और अपने मामू से मुकम्मल तौर पर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। सुरैया बेगम तो हद से ज़्यादा निढाल थी। उसके हुक्म के मुताबिक ज़िशान को गिरफ़्तार करवा दिया गया और उसका केस उसने खुद देखा था। अगर वो उसे जान से ना मरवा सका तो उसे 20 साल तक तो ज़रूर जेल में रखेगा, और इस बात का अहद उसने खुद से किया था। 3 दिनों के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसने सुरैया बेगम से कहा था कि वो अपने बाबा के घर जाएगी और वो अपनी इज्जत गंवा चुकी है, और मुझे ऐसी लड़की अपनी बहू के तौर पर तस्लीम नहीं है। इसमें मेरा कसूर है कि मैंने उससे नफ़रत की और उसकी दादी का इंतकाम उससे लिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं चाहा था कि वो अपनी इज्जत गंवा दे। शगुफ्ता बेगम ने यज़दान के सामने अपनी ख्वाहिश रखी और वो उन पर शिद्दत से धाड़ा था। ख़बरदार, अगर आपने इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो वो मेरी बीवी है और मैं उसे तस्लीम करूँगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शगुफ्ता बेगम को उसका जुनून देखते हुए खामोशी इख्तियार करना पड़ी और वो जाते ही दादी के कदमों में बैठ गया था। आप यहाँ से नहीं जाएंगी दादी, ये मेरी बीवी है और मेरे पास रहेगी। जबकि सुरैया बेगम ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम ऐसे शौहर हो जो अपनी बुज़दिली की वजह से अपने रिश्ते को तस्लीम नहीं कर पाया। क्या कमी थी इसमें? तुम्हारी नस्ल की थी, तुम्हारे चचा की इज्जत थी और तुम्हारे निकाह में थी और तुमसे मोहब्बत करती थी। इसका कसूर यही था कि इसने तुमसे वफ़ा करनी चाहिए, जबकि वो बेड पर निढाल सी घुटनों पर सर रखे रोती रही। मुकाबिल ने अपनी गलती तस्लीम की थी और उसने उसे सीने से लगाते हुए उसे एहसास दिलाया था कि वो सारी ज़िंदगी उसके साथ खड़ा रहेगा। उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। उसकी बीवी की इज़्ज़त लूट ली गई थी और ये सदमा उसके लिए कम ना था। वो एक ऐसी लड़की को अपनाने जा रहा है जिस लड़की की इज़्ज़त ही तार तार हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ वो बेकसूर लड़की इस बात पर हैरान थी कि आखिर उसे किस बात की सज़ा मिली। अपने हाथ से ज़्यादा बढ़ी हुई नफ़रत में ये मत भूल जाएं कि मुकाबिल आपसे कम हैसियत रखता है। उसकी औकात आपके सामने टके की नहीं है। बस ये ख्याल करें कि वो इंसान है और उसके साथ जोड़ा गया रिश्ता खुदा की रजामंदी है। अपनी बीवी को किसी के हाथों का खिलौना मत बनाइए, क्योंकि लोग उसे खेलने के बाद तोड़ देंगे, और उसे संभाल कर अपने पास रखें ताकि वो वफ़ा निभाने में आपको भी मात दे जाए। एक बीवी उस वक्त तक लावारिस है जब तक कि उसके शौहर का सहारा उसके हमरा नहीं होता, चाहे फिर सारी दुनिया ही क्यों ना उसके साथ खड़ी हो जाए।